GN English Point. I'm Ganesh Naik, invite you to the next episode number 19. Today we shall discuss and translate various sentences into English sentences of past tense, progressive verb, negative sentence, and interrogative sentence. Basically, from the very beginning, I have told you that most of the people are very strong at tense. They know very well. They can speak fluently all the forms and all the tense also in English. But they are facing a trouble to talk with others, write English, speak English, communicate their feelings with others. And when they are going to write an application, write a letter, to write a passage, to teach something to the students also, professionally as the teacher, they are facing the problem. Because you know very well that in front of the students, as the teacher, one person should do. Present the subject matter very properly. They must maintain the teaching method that is simple present always. The teacher always uses the simple present when they teach to the students any subject in English. In a CBSE school or ICIC school, they use that part. And when the teacher is presenting the subject matter, then when the teachers are targeting the topic, they have to maintain their teaching methods in English to English. At that time, suppose 45 students are sitting in front of the teacher. The teacher should be very careful that his speaking style, teaching method, and the pronunciation of the words, and the fluency of talking and speaking should be very classic, new classic, marvelous, outstanding. As a result, the teachers must be impressive, and most of the students are facing the trouble when they are appearing the competitive examination. When they are giving their personal information to the experts, at that time they are facing the troubles, properly can't speak English. When we are speaking English, at that time you should be very careful that the sentence structure, what we are telling. Very slowly, you can speak English, no problem. But the words, the pronunciation, the sentence structure should be very perfect that the listener can understand. You can highlight, you can hijack the minds of the listener because of your teaching styles. Then a synonym, antonym, phrasal verbs, proverbs, idioms, contracted forms to words, different types of similes, metaphors, prepositions, adverbs, and adjective, such type of a dynamic items of English grammar word you have to include in your sentence. As a result, your speaking, your presentation must be highlighted, outstanding, red letter, remarkable. You can draw the attention of the listener. You can touch the mind of the listener. You can touch the heart of the listener. You can arrest the attention, heed, concentration, interesting of the listeners because of your talking styles and uses of different types of sentences. That is why the intention or mission of a GN English Point that to clearly generate the confidence, generate the strong confidence in your minds that one day you must be a dynamic orator to speak English and to write English also. I prefer always to use different types of sentences. In the literary sense, I use such type of sentences that I always win the hearts of the children. I always attract to back on the victory because of my speaking style and my teaching style. My students
give importance to me. My students like me so much because of I always maintain such a standard of speaking, standard of teaching styles in English, and having the very strong source of English grammars. As a result, I do not face any trouble to take the successful classes and to give the magnificent, brilliant success to the students. I always assist my students to see the smiling face of success and to touch the climax of success, to touch the top branch of the tree of education in their life. As a result, they always like me and prefer to be also. So that sentence structure is most important. Remembering the tense patterns, remembering the future tense is not important. But that is the importance to gain the numbers of word powers. You have to be very strong at the word powers. You have to know numbers of words. You have to culture, advance of dictionary, different types of English books also written by prominent English educationalists, professors. As a result, regularly also you have to read the newspaper, English newspapers. As a result, you will be acquainted, related with the different types of nice words, which words will decorate your personality. As a result, you can also enjoy also your teachings, because when you will be accepted by the students, that is the motto, target of a Gen English point, to give such type of success. So follow next class. Tense is past. Tense is past. Progressive form. Progressive form. Negative sentence. Negative sentence. And today we shall translate Urdu to English sentences by the help of tense is past, form is progressive, or a continuous, or a imperfect, and a negative. In the previous class, I had already told about past tense progressive form positive sentence. Today, negative. The structure of past tense progressive form negative sentence: subject plus was or were plus not plus B1 plus ing. Subject plus was or were plus not plus B1 plus ing. This is structure we have to store in our mind. Every day we are producing or releasing numbers of sentences such types, so that the structure should be in our minds. Within very short periods, we have to translate Urdu to English by the help of this. Example. One example. जते बेले पास्ट टेंस प्रोग्रेसिव फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस रे कथा आसे जे मु जते गुटे वाक्य कहिबी जनकू इंग्रजी रे मु जण आज्ञा को कहिबी जण आज्ञा पचारिले मते गणेश बाबू आपण बगीचा रे गतकाली गछरे पानी देबार मु देखिली गणेश बाबू मु आपण को गतकाली गछरे पानी देउथबार देखिली ये एक प्रकार वाक्य ता स्ट्रक्चर अछि जने कहले मु गतकाली जने लोक गुटे साप को जोरे बाडे बाडे मारि देबार देखिली ये गुटे वाक्य आ इंग्रजी करबा पड़ो जने कहले बाप रे बाप गतकाली जगह रे प्रचुर वर्षा होला ये पॉजिटिव कहले ये गुटे स्ट्रक्चर जने कहले गतकाली एई समय पिला माने पड़िया रे फुटबॉल खेलु नथिले ये गुटे स्ट्रक्चर वाक्य आउ जने कहले गतकाली मो मां एई समय घरे किछि कार्य करू नथिले ये गुटे वाक्य
तेणु जिते गुड़िया वाक्य अच्छी स्ट्रक्चर अच्छी आमको चिन्हवाक पड़ो जे ए वाक्यटी कौ टेन्स कौ फर्मर कि प्रकार टाइप सेंटेंस एति कथा आ से सेंटेंस भितर को शब्द अच्छी को उड़िया शब्द अच्छी तार इंग्रेजी शब्द कौन गतकाली माँ आमलेट तैयारी करने बापा नखरे पियाज रु चुपा छड़ा आमको पियाज जाना पड़ो अर्थ इंग्राजी कौन चुपा छड़ेवा तार इंग्राजी जाना पड़ो आमलेट करने जाना पड़ो बापा जाना पड़ो ये विभिन्न प्रकार ओडिया शब्द जिते रही ओडिया वाक्य तार इंग्राजी जानापी आमको वर्ड पावर डेवलपमेंट करा पड़ो ता सहित टेन्स पैटर्न जाना पड़ो गोटे वाक्य मुझे कहली जे पिला माने गतकाली क्रिकेट खेलु नथिले पिला माने गतकाली क्रिकेट खेलु नथिले गोटे वाक्य ए वाक्य आम प्रयोग कर इंग्राजी अनुवाद करवा इंग्राजी अनुवाद करने आमको शारीरिक परिश्रम करने को पड़ो ना आमको मानसिक स्तर में ओडिया को इंग्राजी करवा आज्ञा कहुई छात्र शिक्षक भितर किसी तफात ना दैट इज नो डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स बिकॉज द टीचर नोज द स्टूडेंट्स डू नॉट नो once the teacher will tell the students will know and will be equal जड़े व्यक्ति जानी जड़े व्यक्ति जानी ना जो व्यक्ति जन को जानी गोटे कथा से कहीदे आउ जन को जानीगले सामान होगले कठिन कार्य किसी ना तो आमको जी जानी पिला माने गतकाली क्रिकेट खेलते शतकड़ा 100% इंग्राजी मीडियम पिला इंग्राजी करते ये वाक्य जब आम गोटे तृतीय श्रेणी पिला गोटे चतुर्थ श्रेणी पिला गोटे प्रथम श्रेणी पिला गोटे पंचम श्रेणी पिला गोटे दशम श्रेणी पिला एमती आप पचारतु बहुत पाठ पढ़ा व्यक्ति जनक भी इंग्राजी करें ना कहीं करें ना जी जानी से करें ना आम जाना क्या सहज हो पाए क्या कठिन हो पाए कि आम चिंता करवा जे एवरीवन शुड सपोज आई नो I can understand English, I can speak English. Suppose I met a rickshaw puller, and when I am in trouble, I wanted to take the help of that rickshaw puller. And the rickshaw puller doesn't understand English. Then I cannot communicate, I cannot tell anything, and I cannot convince the rickshaw puller that what I want. So that I must think that the rickshaw puller also should learn English. That is why I have to give service to him. Having this noble mission, if everyone will cooperate others, assist others, helps others, then this international English language will be balanced and everyone can speak and write and maintain their interaction with each other and will avoid our problem. Having that mission, everyone should serve for others. It's the intention of an English point. I want that which is so much interested and very poor at English and so much interested especially to speak and write English for the facing the trouble and take my classes and share with me and discuss with me, then we will be able to speak and write English also very easily, very quickly. The English point is providing the service. Is the tense pattern is going on form after form. At home also a housewife who is unable to take the help of, but cannot help the small child, which is the schooling child, who was admitted newly also in English. Suppose a small child standard 1 in English medium school. Mother at home, housewife, but doesn't know, understand and write and speak English language. If she can regularly take the classes also, after 1 or 2 months, finishing these tense patterns, can able to speak and write English and can help the small child. पिला माने गतकाली क्रिकेट खेलुଥିଲେ गोटे इंग्राजी अनुवाद करवा एतरे पिला माने गोटे शब्द गतकाली गोटे शब्द क्रिकेट गोटे शब्द खेलुଥିଲେ गोटे शब्द
ओडिया को इंग्रजी अनुवाद करे बोले before trying to translate Odia to English at first we have to separate the words. Separate the words. I separated the words. Then तापर हमें कौन करेगा ना हमें action word को खोजो है तो search next the action word और doing word और verb इतने verb वाला खेलो न थी भी verb then तापर खोजो subject किए खेल न थे ना पिला माने खेल न थे जितना मैं पचार के बाद से action word को verb ये लगा खेल न थे किए खेल न थे ना पिला माने खेल न थे ये काम रे जा कर रहते हैं सब्जेक्ट पिला माने सब्जेक्ट लाइक नंबर 1 भर भेला 2 नंबर 1 बाप प्रसन्न क्रिकेट 3 नंबर 1 बाप प्रसन्न नंबर 1 देखंतु खेल नथिले एडी खेल नथिले एडी भर v1 रो सब फॉर्म जाय छै तो v1 हमें तक देले चिन्ह कोले v1 एक्शन 1 आ ए खेल नथिले जेता हमें देखिले से एक्शन 1 बोला देखले खेलु नथिले से क्रियापद रे शेषकर लला ली उच्चारण हेले से वाक्यटी पास्ट टेंस रे नाम चेदिबा तो ए वाक्यटी हला पास्ट टेंस इज पास्ट बिकॉज़ द लास्ट लेटर ऑफ दिस एक्शन वर्ड pronounced la if the last letter of the action word pronounced la li lu le we must know that it is the past tense sentence according to that with the past tense तापर जानला पर से एक्शन वर्ड टी खेलु नथिले से नेगेटिव अछि खेलु नथिले नेगेटिव अछि जेतेले कोन से एक्शन वर्ड नेगेटिव रे थाए सेतेला को कष्ट पड़े ये को टेंस रो को फॉर्म जानि पारत नै टेंस जानिबा ए ओ उ एम ती छ छा छि उच्चारण प्रेजेंट टेंस रो वाक्य बो बा बी बो उच्चारण फ्यूचर टाइम रो से वाक्य लो ला ली लू उच्चारण से पास्ट टेंस रो वाक्य ये जनरल फॉर्मूला कॉमन थिंग्स शॉर्ट फॉर्म्स जस्ट वी नो दैट बट फॉर्म जानिया पाई कारण प्रत्येक टेंस रे चारटी फॉर्म अछि सिंपल प्रोग्रेसिव परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म जानिया पाई हमकु से एक्शन वर्ड को पॉजिटिव करिया पड़ियो से खेल नथिले हमें कहला खेलु थिले जदि नेगेटिव हमें पॉजिटिव कर हमें फॉर्म जानि पारिबा खेलु नथिले को पॉजिटिव कले हो खेलु थिले तापर कर्ता को मिसे दियो सब्जेक्ट मिसा तो पिला माने खेलु थिले ता तो अतुल लाली ये पास्ट टेंस रे खेलु थिले ता तो अतीत रे बा पास्ट टेंस रे गुटे कार्य चालुतिला पिला माने खेलु थिले कार्यटी चालुतिला पिला माने खेलिले नुवा जा सिंपल को बुझाए पिला माने खेलु थिले अर्थात ल ला उच्चारण होबारु ये पास्ट टेंस रो वाक्य एवं कार्यटी चालुतिला अतीत रे कहा द्वारा पिला माने द्वारा कर्ता रे चिल्ड्रन पिला माने खेलु थिले तो पास्ट टेंस रे जे तो कार्य एक्शन टी चालुतिला बा तो एक्शन वाज गोइंग ऑन टेकिंग प्लेस तो ये वाला प्रोग्रेसिव और एक्शन टी प्रोग्रेस करतेला बा परफेक्ट नथिला बा कंटीन्यूअस फॉर्मूला तबे टेंस ला पास्ट फॉर्मूला कंटीन्यूअस बा प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस पिला माने खेलुथिले तो पिला माने खेलुथिले पास्ट टेंस प्रोग्रेसिव फॉर्मूला में जानि पारिले तापर से खेलु नथिले ता तो टेंस ला पास्ट फॉर्मूला प्रोग्रेसिव खेलु नथिले नेगेटिव तो पास्ट टेंस रो प्रोग्रेसिव फॉर्म रो बा कंटीन्यूअस फॉर्म रो नेगेटिव रो सेंटेंस ये तार फार्मूला तार सूत्र तार स्ट्रक्चर ता गठन ए वाक्य रो एला सब प्रथमे सब्जेक्ट देखो तो सब्जेक्ट मु दे देले सब्जेक्ट प्रथमे लिखले सब्जेक्ट की दा पिला माने इंग्लिश चिल्ड्रन एक नंबर वाला चिल्ड्रन सब्जेक्ट देखो तो तार वाज अछि ओयार डब्ल्यूआर ओयार माने तार डब्ल्यूआर माने पिंधिबा कुटन डब्ल्यूआर माने पास्ट टेंस रो बी वर्ब रो प्लुरल फॉर्मूला में जानिबा प्रोनाउंसिएशन इज सेम बट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर then जे तो चिल्ड्रन यूज चाइल्ड और प्लुरल फॉर्म बहुवचन तो हमें चिल्ड्रन हमें ता पाई वाज ओयार बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब अछि वाज आ ओयार पास्ट टेंस रो हमें ओयार बोलबा जेतु सब्जेक्ट प्लुरल द हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी आल्सो प्लुरल एटा वर्ब एग्रीमेंट हुआ जे ए सब्जेक्ट पे को वर्ब टी एग्री हिजो ना वाज ओयार एग्री हो से ए सब्जेक्ट रे जवाब है बोलेगा ओयार डब्ल्यूआर प्लस नॉट अछि लेकिन नॉट ओयार नॉट में शॉर्ट फॉर्म में लिखि पारिबा एमिति लिखि पारिबा ओयार एमिति लिखुछंती
एटी देखो आर लिखि सम एमती नट कर जमी आम कहते जोड़ा वी आर नट ये लिखा हाज नट आम सर्ट फॉर्म कर हाज नट हाइपेंथेटिक नट लिखुन सर्ट फॉर्म आम लिखुन विल नट ताको आम सर्ट फॉर्म रे WON ओन कर कॉन्ट्रैक्टेड कह जाए इंग्रजी टर्म रे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कह जाए कॉन्ट्रैक्टेड जहां हमरा स्पोकन रे व्यवहार करा जाय थाए ता तो आइस जतरा में कहते शॉर्ट फॉर्म रे यूज हुए स्पोकन रे सबरे तबे चिल्ड्रन वी आर तार नॉट लागया तार V1 असला खेलुतले खेलुतले V1 ला प्ले PLAY प्ले प्लस आईएनजी प्ले प्ले भर रे प्ले माने खेलिबा मो कहतिन आ प्ले नाउन रे त प्ले अर्थ नाटक बा ड्रामा हम जाबो ड्रामा प्ले मैकबेथ इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर मैकबेथ इज ए प्ले मैकबेथ इज ए प्ले हैमलेट इज ए प्ले ड्रामा रिटन बाय विलियम शेक्सपियर प्ले आईएनजी लागला तेरे वर्तमान स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर ला कोन ना चिल्ड्रन वी आर नॉट प्लेइंग एक नंबर 2 नंबर वर्ड कटिंग कितना सहज देखो हाउ इट इज इजी टू ट्रांसलेट ओडिया टू इंग्लिश just I applied the structure of this sentence first I tried discovered wanted to know inquired the tense then a verb then a type of a sentence and the structure I remember the structure and I applied the structure children we are not playing पिला माने खेलते एक नंबर वर्ड 2 नंबर वर्ड चले गला कर्ता क्रिया हमें जो कहती जे कर्ता क्रिया कर्म मने रखि देले कर्ता क्रिया कर्म प्रथमे हमें वाक्य सजाड़ देबा आ फोर्थ वर्ड फिफ्थ वर्ड हमें जॉइन करबा सेंटेंस हे जो किंतु सब सेंटेंस रे सब्जेक्ट एक नंबर वर्ड सब प्रत्येक सेंटेंस रे सब्जेक्ट एक नंबर वर्ड कि V1 हमें जोड़ा नो जो हमें 2 नंबर वर्ड V1 सब में 2 नंबर वर्ड नो टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ में भी नछि तो हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर बहुत जी इंग्रजी रे ये होची टेंस स्ट्रक्चर अछि त आई शुड गो मु जीवा उचित आई विल गो मु जाई थाए आई हैव टू गो मते जीवा कहबो I shall have to go मते हमें जाको I have to go मते जीवा को हुए हमें कोन हमें जीवा को बोले I shall have to go मते जीवा को हेबो I have to go मते जीवा को हुए I go मु जाय I will go मु जाई थाए I may go मु जाई पारे संभावना अर्थ रे I might go कम समय अर्थ रे मु जाई पारे I can go सामर्थ मु जाई पारे I could go पाठ मु जाई पारे बा I was able to go मु जीवा को सक्षम होइली I need to go मु जीवा को दरकार करे I must go मु निश्चित जीवी I shall go मु जीवी किंतु निश्चित न I will go मु जीवी किंतु निश्चित I might go मु जाई पारे कम संभावना अर्थ रे I have to go मोर जीवार थिला I should go मु जीवा उचित I ought to go मु जीवा उचित ई प्रकार सब विभिन्न प्रकार स्ट्रक्चर सब अछि पासिव स्ट्रक्चर अछि एक्टिव स्ट्रक्चर अछि हम आगो को हम स्ट्रक्चर जानिबा जेते सब स्ट्रक्चर कंप्लीट हे जीवो यू विल बिकम द मास्टर टू स्पीक एंड राइट इंग्लिश बट कीपिंग पेशेंस यू हैव टू लिसन एंड टेक ऑल द क्लासेस शेयर विथ मी एज माय क्लास बट पिला माने खेलुतले चिल्ड्रन वे आर नॉट प्लेइंग एक नंबर वर्ड 2 नंबर वर्ड चली गला आसी गला 3 नंबर वर्ड क्रिकेट क्रिकेट CRICKET क्रिकेट देखंतु ये 3 नंबर वर्ड अछि क्रिकेट एक नंबर ला सब्जेक्ट 2 नंबर ला वर्ब 3 नंबर अछि क्रिकेट 4 नंबर अछि गतकाली आमे 3 नंबर जगह 4 नंबर वर्ड मते यूज कर पाइबा 3 नंबर जगह 4 नंबर वर्ड यूज कर पाइबा कर्ता क्रिया कर्म देखिले चिल्ड्रन वे नॉट प्लेइंग कोन खेलुतले प्लेइंग पर क्रिकेट अछि जा कर्म बा ऑब्जेक्ट इंग्रजी रे कोआ ऑब्जेक्ट तेनु चिल्ड्रन वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट जदि क्रिकेट जगह मु 4 नंबर वर्ड लिखि देबी से जो चिल्ड्रन वी आर नॉट प्लेइंग गत काले ला यस्टरडे तापर आसो क्रिकेट किंतु ये सेंटेंस के कानो सुनिथि इट इज नॉट अ स्वीट टू लिसन जते सेंटेंस टी स्वीट टू लिसन हो से सेंटेंस को एक्सेप्ट करिवे 3 नंबर 4 नंबर वर्ड आपको जो नंबर आनी पारे सिलेक्शन कर पारे एटी मात्र 3 4 टी वर्ड अछि वाक्य अछि मु कहि जे वाक्य अछि 40 50 वाक्य अछि 40 50 टी वर्ड रे वाक्य अछि गोटे पूर्णच्छेद रे गोटे पैराग्राफ रे पारे
देखो मु कहूँ ये लिखिदेली क्रिकेट 4 नंबर वाला गतकाली यस्टरडे ये टाइम एडवर्ब एडवर्ब टाइम है यस्टरडे गतकाली चिल्ड्रन वे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे ये चारोटी वर्ड अच्छी बोली ये वाक्यटी हे गला तापर आसीला देखंतु आ गोटे वाक्य मु करू गतकाली एठारे प्रबल वर्षा हेउ नथिला एडी गतकाली गोटे शब्द एठारे गोटे शब्द प्रबल वर्षा गोटे शब्द हेउ नथिला शब्द ओडे इंग्रजी करा पाइले एक्शन वर्ड देखला में हेउ नथिला के करता लागो वर्षा वर्षा ला सब्जेक्ट तापाई इट लागे वर्षा हेबा वर्षा हुए इट रेन्स वर्षा हेउची इट इज रेनिंग वर्षा ला सब्जेक्ट ला इट थर्ड पर्सन से लागो त हेउ नथिला लाल वाला उचाड़ वाला ये पास्ट टेंस र वाक्य को फॉर्म जानिबा के पॉजिटिव कर देबा हेउ नथिला हेउ थिला ता तो पास्ट टेंस र ये प्रोग्रेसिव हेउ थिला काम चाली थिला ताले टेंस रा पास्ट फॉर्म वाला प्रोग्रेसिव तो पास्ट टेंस से प्रोग्रेसिव रा हेउ नथिला नेगेटिव सेंटेंस ता सूत्र आसला कोन ना प्रथम सब्जेक्ट मोर परता देखो देखंतु एतरे 1 नंबर 2 नंबर वाला को दे दोची वर्षा पहला इट जाते नाई देखो प्रबल वर्षा हेउतला एडी ताबाय में इट नबा जा आपन को थर्ड पर्सन नंबर वर्षा हवा वर्षा हुए इट रेन्स माने मरुभूमि में वर्षा हुए नहीं इट डजंट रेन इन डेजर्ट इट लागे सब्जेक्ट पाई तो वर्षा पाइला इट आसला प्रथम सब्जेक्ट वर्षा पाइले लिखले इट अब नो इट माने खाइबा एक्शन वर्ड इट लागे सब्जेक्ट तापर आसला वाज नॉट वर्षा पाई हेल्पिंग वर्ड जो वाज इट वाज तापर आसला नॉट इट वाज नॉट इट वाज नॉट वर्षा हवा बाजुडा में बोल रेनिंग इट वाज नॉट रेनिंग बा डाउन पोरिंग लिखि पाइबे डाउन पोर माने प्रबल वर्षा डाउन पोर माने वर्षा हवा प्रबल वर्षा हेवी रेन जोड़ा कटाउची इट वाज नॉट डाउन पोरिंग सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट लाइट वाज वे आर हेल्पिंग वर्ब वाला वाज लागिला नॉट बी वाला डाउन पोर आज डाउन पोरिंग इट वाज नॉट डाउन पोरिंग लेकिन देले इट वाज नॉट डाउन पोरिंग तापरे गत एठारे देखो एठारे इंग्लिश यस प्लेस एडवर्ब है प्लेस एडवर्ब वाला हियर आउ जो वर्ब ଅଛି एक्शन वर्ड हियर मन सुनिबा ए जे हियर गतकाली यस्टरडे देखो तो एडवर्ब लागी सब एडवर्ब पर एडवर्ब आसला व्हाट इज एडवर्ब इज ए वर्ड which adds the extra meaning with the adverb with the verb with the adjective तो एडवर्ब पर एडवर्ब लागी हियर ला प्लेस एडवर्ब यस्टरडे ला टाइम एडवर्ब पर एडवर्ब लागी इट वाज नॉट डाउन पोरिंग हियर यस्टरडे एक गतकाली एठार प्रबल वर्षा हेउतला कि आपण ता कहि पारंती आ कोन आ कहि पारबे ना इट वाज नॉट raining here एठारे प्रबल वर्षा या इडियम लागिला cats and dogs माने हेवी it was not raining here cats and dogs वाला इडियम व्यवहार है एठारे गतकाल ताप लिख देला मैं yesterday it was not raining here cats and dogs yesterday गतकाल एठारे प्रबल वर्षा होतला समाने गतकाली कटक जाउ नथिले they were not going to कटक yesterday गत वर्ष मोर आमे गत वर्ष आज तारीख रे बा ए तारीख रे मो जन्मदिन मो पालन करनथली I was not celebrating my birthday by today's date last year आमे कहि पाबा मा गतकाली रुसे करनथले मदर was not cooking yesterday गतकाली पिला माने फुटबॉल खेला को पड़िया को जाउ नथिले children we are not going to field to play football गतकाली भुवनेश्वर वर्षा हेउतला इट वाज नॉट रेनिंग इन भुवनेश्वर यस्टरडे नेगेटिव हेला
past tense negative sentence. आगरू आजिकाली भली आगरू भारतीय छात्र छात्री माने कठिन परिश्रम करू नथिले. Indian students we are not working hard before as like as today. आजिकाली भली आगरू भारतीय छात्र छात्री माने कठिन परिश्रम करू नथिले. Indian students we are not working hard or Indian students we are not leading industrious life before as like as today. गतकाली बाघटी आम गाँ पाख जंगल रे पूर्व भली गर्जन कर नथिला. The tiger was not roaring. The tiger was not roaring as like as before in the jungle nearby my village yesterday. Sentence. तेबे idiom कथा हम कहली क्या सेंटेंस idiom आप लोग have to remember numbers of idioms are used in the sentences and your sentences must be dynamic or outstanding. You can be impressive by speaking. जेमिति जिलापाल को गाँव लोक माने जल संकट संपर्क रे लिखित आकार जणाइले. The villagers conveyed the water problem to the collector by black and whites. Black and whites ये idiom ग्रामर of the most important item. Black and whites माने लिखित आकार रे आपण जहा कहउछंती मु किछि बुझि पारु नाही लिखित आकार रे मते जणा. Please what you want to say to me I can't understand by black and white please inform me or report me. Sentence. आज क्लास ऐसे गला. If you like my classes and the channel is also, please you give the likes and give comments also and subscribe to survive the channels. Have a nice day. Thank you.